लेवल पर डिस्कस किया है कि उस जमाने 1947, 48, 49 में भी वो सोच रहे थे, सब मेंबर आफ्टर मेंबर, सदस्य आफ्टर सदस्य, men and women, कि भाई देश के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि देश में क्या हो गया, कैसे देश में सत्ता का दुरुपयोग होगा, नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव होगा, नागरिकों के हक कैसे छीन लिए जाएंगे, ये सब उन्होंने उस वक्त सोचा और डिस्कस किया है इन ग्रेट डिटेल। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। देखिए आज हम देश में क्या देख रहे हैं, पिछले खास करके पिछले 50 साल 1970 के बाद, मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इरोजन शुरू हुआ वो मिसेस गांधी के आने के बाद हुआ। मिसेस गांधी came to be working for the people, but she had no respect for the constitution, and you saw that when she imposed emergency, and our great Supreme Court said that yes, fundamental rights can be suspended during emergency. और जजेस लाइक चीफ जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ और जस्टिस प्रफुल्ल भगवती, उनके साथ जो अपने आप को बहुत बाहोश जजेस माने जाते थे, उन्होंने नागरिकों के साथ खड़े नहीं रहे और एक ही जज खड़ा रहा, जस्टिस एच.आर. खन्ना। उन्होंने बोला कि ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, इसको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है, इसको कोई नहीं ले सकता है, और मिसेस गांधी का कोई हक नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सके। बट ये एक सोचने की बात है कि देश में क्या हो रहा है। आज जो हो रहा है, the executive gives lip service to the constitutional values. As a result, fundamental constitutional and legal rights are constantly trampled upon. No one in this country can say with confidence that executive will not strike at him or at her at its sweet will in gross violation of fundamental rights. आज कोई सेफ नहीं है देश में। If anybody thinks that I am safe because I have not done anything, they will find something against you. If stand-up comedians are not spared, if simple tweets are not spared, then you can imagine that you and I will never be spared. Every one of us can be subjected to state's excesses. And our courts, I must say, with great respect to these retired judges whom I hold in high esteem, our courts are biggest failures. Biggest failures. They do not come down with a heavy hand on the executive and tell them that you cannot take away even for liberty of a citizen. आज खुले रास्ते पर लोगों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। What kind of a country we have converted ourselves into? वर्ष टू वर्ष क्रिमिनल को भी न्यायिक प्रणालिका के सामने लाना होता है, उसको गुनहगार पुरवार करना होता है और उसके बाद उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो पूरे देश के गुनहगारों के लिए एक मिसाल बन के रहे कि मैं अब गलत नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी वो जेल में बैठ के सोचता रहे कि मैंने क्यों गलती की अपनी लाइफ। अब आप एनकाउंटर करके उसको 2 मिनट में मार देते हैं तो वो तो सब खत्म हो गई बात। There is no suffering for him. But these encounters are being used today as an instrument of state policy. And if people can be killed in encounters, you can imagine, okay, is there any constitutional morality left in this country? There is nothing left. And everybody, and सब लोग आज शांत थे। ना सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है। 183 encounters in UP. When PM was chief minister in Gujarat and Shri Amit Bhai was home minister of state in Gujarat, more than 25 people were killed in encounters, including Surabuddin and his wife Kausapi Prajapati and many others. Nothing has happened. Everybody gets away with it. So, these are examples which tell you that there is an abject failure of constitution. National Human Rights Commission किस लिए बनाया गया है? और आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में से एक आवाज भी उठती है ऐसे गुनाहों के सामने। ये स्टेट के गुनाह है, स्टेट गुनहगार है, और दिस शोज दैट देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी। आज स्टेट ऐसा समझने लगा है, पुलिस ऐसा समझने लगी है कि ये जजेस के पास क्यों जाए, 20-25 साल करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे इसको, उसके जगह लाओ और उसको मार दो। Now, this is a situation which in a democracy is unacceptable. If Aurangzeb did that, one can understand because we will call him barbaric.
But if democracy does it, what do we call them? So this is something we have to understand कि आज हमने देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं और उसमें हम सब शामिल हैं क्योंकि हम सब साइलेंट हैं. We are not willing to speak. We are not willing to stand. So every one of us is responsible. और सोचिए, I mean जैसे वो एक बहुत ही सीरियस इंस्क्रिप्शन है वॉशिंगटन में हॉलोकॉस्ट म्यूजियम में, तो it runs something like this. उसमें लिखा है कि पहले वो आए ज्वेलर्स के लिए, मैं ज्वेलर नहीं था इसलिए मैंने कोई आवाज नहीं उठाई. फिर आए वो मोची के लिए, मैं मोची नहीं था इसलिए मैंने आवाज नहीं उठाई. फिर आए कोई वर्कर्स के लिए, मैं वर्कर नहीं था इसलिए मैंने आवाज नहीं उठाई. फिर आए मेरे पड़ोसी के लिए और मैंने आवाज नहीं उठाई. फिर मेरे लिए आई तो कोई आवाज उठाने के लिए था ही नहीं. तो ये हालत है देश में कि ये कभी भी हम पर आ सकता है और हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला खड़ा नहीं होगा. So we have to realize आज हमारे बच्चों को हम क्या देना चाहते हैं? What do we want to give our children and grandchildren? अगले जनरेशंस को हम ऐसा एक देश देना चाहते हैं जो देश एक मजबूत देश हो, जहां कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत हो, रूल ऑफ लॉ हो, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हो, फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट हो. आज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन ट्रिनिटी है अंबेडकर साहब के हिसाब से. अंबेडकर साहब बोलते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तीनों एक साथ चलने चाहिए और ये कड़ी है. अगर इसमें से एक भी नहीं है तो फिर देश डेमोक्रेसी नहीं है. दिस इज हाउ ही पुट्स इट ब्रिलियंटली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. और आज देखिए फ्रेटर्निटी, भाईचारा, कहां है भाईचारा? हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, या अंडर प्रिविलेज पीपल साथ नहीं रह सकते हाई कास्ट हिंदुओं के साथ. What kind of a country we have after 76 years, 75 years of independence? It is sad that there is no oneness amongst the Indians. All these divisions, religions, caste, creed, everything is working so badly against us that we are not able to overcome. आज हरियाणा में अगर कोई लड़का लोअर कास्ट का और हायर कास्ट की लड़की के साथ शादी करता है तो पूरा खानदान बैठ जाता है और उन दोनों को मार देने के लिए डिसीजन लेता है. खाप पंचायत इज द कॉल. इज दिस डेमोक्रेसी? और वह सब चल रहा है. इट इज हैपनिंग टुडे. आज कहीं भी जाओ, कोई भी एरिया में, बंबई में, right, Muslims are not welcome here. What kind of a country is this? It is so sad to see that this kind of distances, this kind of divisions have come about in last 50-60 years. It was never there prior to independence. अगर ये हमें लोकशाही मिलने के बाद अगर ये हमने देश को बना दिया है तो I think it is a shame on us that we have done great disservice to these people. Thousands of people have laid their lives to give us this freedom, this democracy. Millions went to jail for us. What are we doing today? We are destroying their dreams piece by piece, brick by brick. So it's very hard to understand. अंबेडकर ऑफ कोर्स बोल रहे थे एक बार कि debates in provincial assemblies give me courage to say that constitution as settled by drafting committee is good enough to make in this country a start with. उन्हें draft constitution चालू देश को चालू करने के लिए बहुत अच्छा है. I feel that it is workable, it is flexible and it is strong enough to hold country together both in peace time and in war time. Indeed, he says, if I may say so, if things go wrong under the new constitution, take a look at this man's vision. If things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. कितना self confidence था इस आदमी में, एक genius. अगर constitution फेल होता है तो constitution खराब नहीं है. He says, what we will have to say is the man is wild. उन्होंने बताया कि इंसान मुकर गया है, तब कॉन्स्टिट्यूशन खराब होगा. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सख्त डॉक्यूमेंट है.
So this is a big challenge which Ambedkar envisaged in 1948. How right Ambedkar has been, because too many things are going wrong under this beautiful draft that Rivers gave us. In fact, in discussing directive principles of state policy, Ambedkar said कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक बहुत नॉवेल नई चीज है जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में रख रहा हूं, बट मैं जानता हूं कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स की तरह, बट ये एक सत्ता में जो लोग हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन है, उनके लिए एक लिमिटेशन है, उनके लिए एक बाउंड्री है। तो क्या बाउंड्री थी? जैसे देखिए आर्टिकल 38, स्टेट shall secure social order for promotion of welfare of people, in which justice, social, economic and political inequalities in income, status, facility, Adani's and Adani's. But is that good enough in a country of 142 crores? 85 crore people government has admitted 2 weeks ago. 85 crore people are being given free food by government of India. Which means what? That more than 50% of India's population is below poverty line. 75 साल के बाद अगर 50% लोग poverty line के नीचे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या बात हो सकती? और problem is that हर एक अखबार, हर एक टेलीविजन चैनल को एडवर्टीजमेंट देकर खरीद लिया गया है। आप सुबह अखबार खोलिए, मैं तो अखबार अभी भी पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं सब कंप्यूटर वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, पर पहले तो पेज पर हमारे महान नेताओं की तस्वीरें ही होती है और वो बोलते हैं कि देश में ये हो गया, देश में वो हो गया, देश में फलाना हुआ, ढिकना हुआ, क्या देश का, देश को 26वीं सदी में ले गए, सीधा 26वीं। अब हर एक ये इसको अगर आप ब्राइब कर रहे हैं, ये दिस इज ब्राइबरी, दिस इज नथिंग बट ब्राइबिंग द मीडिया। तो वो मीडिया कभी कोई सत्य छाप ही नहीं सकता है, वो टेलीविजन चैनल कभी सत्य बोल ही नहीं सकते, वो खाली, तो सत्य कभी बाहर नहीं आ रहा है। अगर सत्य तो लोकशाही कैसे मजबूत रह सकती है? तो ये हमारे पॉलिटिशियन ने बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है कि किस तरह से देश में एक तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैली जाए कि देश बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस है। हालांकि आज सोशल इंडाइसिस में, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, ये देश वर्ल्ड में सम ऑफ द लोएस्ट रैंक्स। हेल्थ में हम श्रीलंका और बांग्लादेश से पीछे हैं वर्ल्ड इंडेक्स में। तो ये क्या प्रोग्रेस है? तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज टू एंश्योर, जैसे मर्रापल्ले साहब ने बोला कि, और मैं थोड़ा थोड़ा मराठी समझने की प्रयत्न कर रहा था, बट कि भाई ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे मैं जरूर कह सकता हूं कि मीडिया भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन और मीडिया स्ट्रांग हो तो देश कभी वीक नहीं बन सकता है, देश हरदम सशक्त रहेगा। ये पॉलिटिशियंस कभी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, दे विल हैव टू बी बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दिस इज समथिंग व्हिच वी मस्ट अंडरस्टैंड। Article 39 says, state shall direct its policy towards securing that all citizens, men and women, have right to adequate equality. Resources are so distributed as best to serve common good. क्या हो रहा है आज? हर एक कोल माइन अडानी और अंबानी को जा रही है, जिंदल को। Is it serving common good? I am a capitalist in my heart. I don't agree with communism at all as an ideology, with great respect. But मैं socialist in my actions. I am an absolute socialist in my actions because I do believe that we need a very, very beautiful socialism to take this country. Any strong ideology is not going to work for this country. Whatever you may say. 1932 में जब रशिया में famine आया, nobody spoke a word about it. Millions of people died in Ukraine. It was completely suppressed. Nobody was allowed to go there. No journalist was allowed. Nobody was allowed by the army to go there, even common man.
One American journalist who used to stay there in Moscow, that famous Metropole Hotel, in fact wrote an article saying that all this is a propaganda, that there is famine in Russia and that millions of people have died. So this is how, truth is suppressed by ideologies. Yes, it is. I believe in equality. I do strongly believe that every man and woman in a country must have equal opportunity. And all resources must be shared equally by all of us. But we cannot kill, personal enterprise of individuals at all. And that's the reason why communism has not been successful in the world, I must say. It's a great philosophy. And the RSS and BJP today are following communism to the hill. Marx ने बोला था that religion is the best opium of the masses. और आज देखिए आप हर एक जगह पर मंदिरों में लाखों लोग चढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए, कहीं पावागढ़ ये लोग सब खुश हैं कि हम भगवान के पास सीधे चले जाएंगे स्वर्ग में। तो मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं जरूर। So unfortunately, but nobody is able to understand. आज कोई समझ नहीं रहा है कि मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा है, आज मैं क्यों भूखा हूँ, मेरे बच्चे क्यों भूखे, मेरे पास घर क्यों नहीं है, मेरे पास कपड़े क्यों नहीं है। इसमें कोई भगवान का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है हमारे राजकारणियों का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, हमारे जजेस का, हमारे सब लोग जो सत्ता में हैं। हम वकील लोग भी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वी आर फेलिंग इन एवरी सेंस दैट वी कैन। सो इट्स समथिंग व्हिच इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग। अंबेडकर साहब ने एक बहुत सुंदर बोला था, एंड दिस इज वर्थ हियरिंग, एंड दिस इज वेयर अंबेडकर इज अ जीनियस। ही सेड क्या हिंदुस्तान में फिर से डेमोक्रेसी चली जाएगी? वो अपने आप को प्रश्न पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, शायद कोई लोगों ने उनको बोला हो, तो वो जवाब देते हैं कि हाँ जरूर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान से चली जाएगी। कब? जब इलेक्शन में लैंडस्लाइड होगी। इंदिरा गांधी ने किया, आज नरेंद्र जी कर रहे। तो उन्होंने बोला जब लैंडस्लाइड होगी तो डेमोक्रेसी विल रिमेन इन फॉर्म but not in fact. आज वही हाल, democracy is there on the beautiful Constitution of India, the book. In fact, there is no democracy anywhere. There is an atmosphere of fear. Everybody is afraid. Everybody, including my judges. Everybody is afraid today to stand up and take the government. हर एक चीज सरकार कर रही है, लोगों के हक पर खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ एक सबका दायित्व बनता है, ब्यूरोक्रेट का भी दायित्व बनता है कि मैं अपने मंत्री से डिफर करूं और बोलूं कि ये नहीं करूं नागरिक के हक के खिलाफ। आज कोई खड़ा नहीं है, ना ब्यूरोक्रेट खड़ा रहता है, ना जजेस खड़े रहते। एक जमाना था जब ब्यूरोक्रेट्स यूज्ड टू राइट ऑन द फाइल एंड टेल मिनिस्टर दैट मिस्टर मिनिस्टर इट विल नॉट बी डन। मैंने वकालत चालू की 1978 में, तो गुजरात हाई कोर्ट में जेएम ठाकुर साहब एडवोकेट जनरल, और मैं उनको बहुत क्लोजली देखता था। बाद में उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, वन ऑफ द रीजन वाज हिज एनकरेजमेंट। मैं देखता था बार बार वो कोर्ट में खड़े होकर जजेस को बोलते कि इस केस में नागरिक के साथ अन्याय हुआ है, इस केस को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, आप लिखिए कि एडवोकेट जनरल बोल रहे हैं कि इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। इवन आज हास्यास्पद हो गया है कि हाईएस्ट ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अदर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स रोज सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सबसे खराब से खराब केस में भी खड़े होकर उसको ऐसे लड़ेंगे जैसे ये महाभारत का युद्ध है। So it is becoming really shocking what has happened to us. अब they are expected to be people's representative. आज हर एक law officer has to defend the people of India, not just the government. Attorney General is a constitutional post, Advocate General is a constitutional post, but they are not defending. They are willing to uphold and defend every wrong action of the government. What we see in the country today is a constant erosion of constitutional morality, constitutional values and constitutional ethos in the functioning of executive and the legislature.
As a result, citizens' fundamental constitutional and legal rights are constantly violated. No one can. Every citizen is under executive and not under the constitution. Remember this. Every citizen today is under the executive and not under the constitution. And every government is under ideology and not under constitution. They just, everybody is now, the liberties of citizens in large number are taken away without following procedure established by law. For example, take, the biggest, I would say, blot on this country for failure of rule of law is 1984 riots, Sikh riots, and 2002 Muslim riots in Gujarat. Nobody has been prosecuted. You saw yesterday in Gujarat in Naroda, where 11 people were burnt alive. Everybody has been released as if it never happened. Now the new writers of the books might as well write that 1984 and 2002 never happened. Thousands